Hello YouTube. So today the date is 16th of December 2025 and while I was making the thumbnail for today's video I observed that today is day 30 of 188 and we have been doing this for the last 30 consecutive days, so it's a big thing. Anyway, also, today's test, the topic was Governor, Chief Minister, State Council of Minister. We did active recall for this yesterday, and in the test, I couldn't attempt two questions. Out of those, one was factual in nature, one was conceptual in nature. Regarding the factual one, I don't have any comment. Regarding the conceptual one, I don't know how it didn't click my mind, but at least I didn't mark it negative. Okay, so I just skipped the question. And regarding the incorrect answer, this is basically a wrong answer in the portal. So actually, I scored 46 out of 50 today and two unattempted question. Okay, so this was about the test. Regarding today's topic, okay, so today's topic is Parliament and State Legislature. ठीक है, this is a huge topic. ठीक है, this is one of the most important and also the largest, probably the largest topic of the polity subject, correct? So I don't know how much I will be able to cover this in this short time, because generally teachers take around 10 to 12 hours to teach this whole thing. ठीक है, so that's obviously not possible. I will probably make a video of 30 to 40 minutes and try to cover the things I can. Also, I am thinking to make this video in two parts, and but it's not possible to cover Parliament on a separate day and state legislature on a separate day, because most of the things are very very similar, so we have to cover these two like houses, these two category of houses in comparative manner. So what I will do is that I will cover certain things through in this video. We'll actually will see कि कितने देर का वीडियो बनता है ये, एंड उसके बाद विल टेक अ डिसीजन कि इसको और एक्सटेंड करना है या फिर कल के वीडियो में करना है एक्सटेंड इसको, बाकी का कंप्लीट करना है. सो विल सी देयर. ठीक है, ऑल्सो जस्ट 30 सेकेंड्स मोर कि आज तो 30/188 डेज है. इट्स अ बिग थिंग. आई मेंशनड इट इन बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ओनली, बट व्हाट आई वाज like feeling today, actually at this point I'm at not at all feeling to study or do anything related to study. I feel like एक burnout सा तो फील होने लगा है. ठीक है, लगातार 30 दिन विदाउट ब्रेक पढ़ाई हो रहा है. ठीक है, ऑल्सो काफी ज्यादा रिगोरस शेड्यूल है सारथी का नेविगेटर का जो टेस्ट शेड्यूल है. एंड नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो उसके साथ साथ मैं ऑप्शनल का रिवीजन कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एथिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ, साथ साथ में सी सैट भी चल रहा है. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. ठीक है, तो मिला जुला के काफी ज्यादा मतलब बेसिकली टायर्ड सा फील हो रहा है. एंड मेरा एक फ्रेंड भी है जो कि आपका इकोनॉमी मैराथन वीडियो में भी था, अंसज भाई. उसका भी तबीयत आज अच्छा सा नहीं लग रहा है. मतलब हम लोग मोस्टली चीजें डिस्कस करते हैं कभी पढ़ते हैं तो. सो ही वॉज ऑल्सो सेइंग मी कि आज तबीयत अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा टायर्ड सा लग रहा है. एंड आई वॉज फीलिंग एग्जैक्टली द सेम. बस मैंने उसको बोला नहीं कि आई डोंट वांट टू स्प्रेड द नेगेटिविटी, बट वही बात हो जाता है कि एट आफ्टर सम पॉइंट यू विल फील द बर्नआउट फेज. ठीक है, एंड टू इन दैट फेज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय पास्ट अटेम्प्ट्स कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए. ठीक है, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ. इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है. ठीक है, आराम से करते हैं. we still got 6 months before our prelims. So पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा एंथुजियाज्म जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा. फिर प्रीलिम्स के एक्चुअल टाइम में जब जरूरत होगा उसी टाइम नहीं होगा, तो दैट वोंट सर्व एनी पर्पस. ठीक है, तो आई होप दैट यू गाइज आर ऑल्सो टेकिंग ब्रेक्स and a lot of people are following this. Also a lot of people are following the सारथी navigator schedule. Also अंसज भाई भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. मतलब हम दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही पढ़ते हैं. ठीक है, डिस्कस होते रहते हैं हम लोग का. तो अंसज भाई इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एंड ही इज अ वेरी गुड गाई. मतलब मुझे तो पिछले 2 अटेम्प्ट में कोई मिला नहीं था पार्टनर टाइप का, कोई मतलब पीयर ग्रुप वगैरह. तो आई एम वेरी ऑलरेडी फीलिंग वेरी ब्लेस्ड इन दिस अटेम्प्ट. सो टच वुड सब कुछ सही रहे. एंड अंसज भाई आई एम श्योर कि आप सुन रहे होगे, तो
कम ऑन यार, टेक सम ब्रेक, आप काफी मेहनत करते हो। एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो टेक सम ब्रेक्स, मतलब थोड़ा बहुत कम करना होगा, ठीक है। डोंट वांट टू फील द बर्नआउट सो अर्ली इन द फेज, ठीक है। ओके, तो 30 days was good of consistency, but this doesn't mean कि I will stop studying और stop posting videos, not at all। बस थोड़ा सा हाफ डे काइंड ऑफ ब्रेक वगैरह ले सकते हैं। Also, the usual disclaimer: this is not a professional teaching video, and especially for today's topic, this is not at all a 100% coverage। 100% coverage इसमें possible ही नहीं है। पहले ही मैं बता रहा हूँ, आई नो कि बहुत कोई इस वीडियो पे ही रिलाई करता है कि चलो वन शॉट में एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट लोगों का पढ़ा हुआ ही होता है, तो लोग सोचते हैं चलो एक कोई भी वीडियो मिल जाए, उससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो भाई प्लीज इस टॉपिक के लिए इस वीडियो पे मत करो रिलाई, बिकॉज मुझे भी नहीं पता मैं कितना कवर कर पाऊंगा इस वीडियो में। दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, ठीक है। चलो, तो विदाउट फर्दर अडू फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। मैंने कुछ कुछ चीजें लिख के भी लाया है ताकि थोड़ा सा हमें एक वो मिल जाए ना, फ्रंट लोडिंग हो जाए, तो थोड़ा सा हमें एक बूस्ट मिल जाए इनिशियली स्टार्ट करते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो पार्लियामेंट है एक तरफ और एक है स्टेट लेजिस्लेचर, और दोनों का जो हाउसेस का अगर हम लोग देखें, तो आपका पार्लियामेंट के साइड में आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऑल्सो इट्स लोकसभा, राज्यसभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड ये सिर्फ 6 स्टेट्स पे है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी हाउस, एंड दीज आर ऑल कंपल्सरी हाउस। ये भी कंपल्सरी है, ये भी कंपल्सरी है, ये भी कंपल्सरी है। ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है। अगर किसी स्टेट को और बनाना है अपने स्टेट में, तो उनको पहले अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और 2/3 से आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला चीज, जो स्पेशल मेजोरिटी 2 बोलते हैं हम लोग कोलोक्वली, ये पास करके फिर पार्लियामेंट भेजना होगा। पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करेगा, मतलब पार्लियामेंट इधर इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, और फिर जाएगा स्टेट के पास ऑप्शन कि वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो दिस इज द थिंग। और ऑल्सो लोकसभा पे ये बाइंडिंग नहीं है बनवाना, मतलब पास करना लोकसभा पे डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने एसएलसी यहीं पे देख लिया, ठीक है। ऑल्सो इसके जो आपका मेंबर्स होते हैं, मतलब ये जो हाउस होता है परमानेंट होता है, और राज्यसभा भी परमानेंट होता है, बट लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का यूजुअली 5 years टर्म होता है, अनलेस की इमरजेंसी के लिए एक्सटेंड हो, ठीक है। ऑल्सो अभी फिलहाल लोकसभा में 543 मेंबर्स है आउट ऑफ 550, नो नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर, ठीक है। 550 मतलब टोटल स्ट्रेंथ, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। फिलहाल हम लोग 543 लेके चल रहे हैं, और 2 एंग्लो इंडियन जो कि सॉरी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 से बंद हो चुका है, तो ये 543 के 543 सब नॉमिनेटेड है। ऑल्सो यहाँ पे 245 जो आपका है, ये 250 टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अभी फिलहाल 245 है, जिसमें से 12 तो आपका नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होता है, वो आपका लिटरेचर वगैरह वगैरह, आर्ट एंड साइंस जो भी चीजें, इस पे बस कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाता है, याद रखना। क्लास आ जाता है इस पे, ठीक है। क्लास आ जाता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्स्ट्रा हो जाता है, और लास्ट आपका इसमें आता है, उसका फुल फॉर्म अभी मुझे एग्जैक्टली सारा याद नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, साइंस वगैरह वगैरह यही सब है, ठीक है। ओके। ऑल्सो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रूल है कि 60 मिनिमम होना चाहिए, 500 मैक्सिमम हो सकता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 28 स्टेट का ये याद रखें, सो नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ऑल्सो टोटल लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने होंगे, ये सबसे पहले 1971 सेंसस के पॉपुलेशन से हुआ था फिक्स्ड। उसके बाद आपको ये 2000 तक इसको हमने एक्सटेंड कर दिया था, 40 मतलब 2000 तक हमने एक्सटेंड कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 76 में हमने डिसाइड किया था कि हम 2000 तक इसको एक्सटेंड करेंगे, और फिर हमने 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डिसाइड किया था कि हम इसको 2026 तक एक्सटेंड करेंगे। एंड अब शायद ये एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि 2026 में सेंसस शायद पास हो चुका है कि 26 में सेंसस होगा, ठीक है। तो ऑल्सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि सेंसस इज अ हॉट टॉपिक एट द मोमेंट इन द कंट्री, सो सेंसस से क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, ठीक है। ऑल्सो लोकसभा में सॉरी एक स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव वो होगा, एक स्टेट में कितने लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, वो 2001 सेंसस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ऑल्सो सेम थिंग फॉर कितने एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, ठीक है। ये भी वही सेम चीज है, एक्सटेंड होते होते पॉपुलेशन है ये बेसिकली, कौन सा ईयर का पॉपुलेशन लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद अगर हम लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे आ जाए, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जो रिमूवल होगा ना, ये हमेशा आपका इसका हमेशा रिमूवल होगा इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। मतलब 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इफेक्टिव मेजोरिटी होगा, बस आरएस चेयर जो है
आरएस का जो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, उसका तो आपको पता ही है ना कि जो आपका राज्यसभा है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी इसको, ठीक है, रेजोल्यूशन को, और लोकसभा फिर उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, ठीक है। लोकसभा जो है आपका सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, तो इम्पीच हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। और जो आपका यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, शायद 14 डेज का नोटिस वगैरह है, आई डोंट रिमेंबर टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है। ये मैंने वाइस प्रेसिडेंट वाला वीडियो में कवर किया था, क्योंकि आज इतने सारा हेक्टिक फैक्ट्स वगैरह सब कुछ है ना, तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बेसिकली। तो उसके बाद अगर हम लोग आरएस चेयरमैन ही पहले कर लेते हैं, तो ये 35 ईयर्स के होने चाहिए, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है एक्चुअली, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, ठीक है। ऑल्सो सिटीजन आरएस एलिजिबल होना ही चाहिए। और ये जो है आपका, इनका जो इलेक्शन होगा उसमें ऑल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ हाउसेस का, ठीक है। और इनको मेंबर ऑफ द हाउस होने का जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली, ओके। ओके, नेक्स्ट जो आपका वोटिंग होता है इनका, तो वो तो पीआरएसटीवी होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक एमपी का एक वोट होता है, और टोटल वोट बाय 2+1 होता है, इसका कुछ कुछ फॉर्मूला सा होता है। और जब कास्टिंग, मतलब जब कोई बिल वगैरह पास करते टाइम टाई हो जाए तो कास्टिंग वोट होता है इनके पास। पर जब खुद का रिमूवल का टाइम आता है उसमें कांट वोट, क्योंकि ये मेंबर ही नहीं है ना हाउस के। पर लोकसभा, उसके बाद आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डेप्यूटी चेयरमैन, ये सब अपने अपने रिमूवल पे ये कैन वोट है ये, ठीक है, कैन है, याद रखना, कैन वोट। और फर्स्ट चांस में कर सकते हैं, टाई होने पे नहीं कर सकते हैं। टाई होने पे कब कर सकते हैं? कास्टिंग वोट कर सकते हैं, जब बिल्स वगैरह पास हो उस टाइम के लिए टाई होने पे वो वोट कर सकते हैं, मतलब दो बार वोट कर सकते हैं, एक फर्स्ट इंस्टांस पे और एक टाई होने पे, ठीक है। और ये भी सेम है, ठीक है, बस अलग है ये वाला पार्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑल्सो दिस इज वाई आई वॉज सेइंग ना, कि अगर आप कंपैरेटिव वे में नहीं पढ़ोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, ओके। ऑल्सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो ये लोग मेंबर ऑफ द हाउस होना मैंडेटरी है। ऑल मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हाउस इनको वोट करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। वी आर डन विद दिस। तो ये मैंने थोड़ा सा लिख के रखा था ताकि थोड़ा सा हमें बूस्ट मिल जाए, करेक्ट। ओके, ऑल्सो हम लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि ये लोग जो आपका वैकेंसी जो होगा इस पार्ट में, ये तो आपका रेजिग्नेशन होगा, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ऑल्सो डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन एज एमपी, या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस से ये सब हट भी सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि वी आर प्रिटी मच डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। आपको ऑल्सो ये चीज भी आपको पता ही होगा कि एक प्रोटेम स्पीकर कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, जब नया लोकसभा बनता है, और फिर वो प्रोटेम स्पीकर इलेक्शन कंडक्ट करवाता है स्पीकर का। और फिर स्पीकर जब बन जाता है उसके बाद वो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रिटी मच डन, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ कुछ टर्म्स याद रखना कि गवर्नमेंट मेंबर कौन होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मेंबर बेसिकली वही होते हैं जो कि मिनिस्टर भी है, पार्टी से मतलब नहीं है। प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो कि आपका मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब रूलिंग पार्टी का है या फिर ऑपोजिशन पार्टी का, ये सब कुछ फैक्टर नहीं है, मिनिस्टर पे डिपेंडेंट है। जो मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट मेंबर है, जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। और ये जो प्राइवेट मेंबर है ये सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है कुछ अलग, नहीं अलग है, बस बजट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बाकी मनी बिल भी पास कर सकता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत कोई टीचर ये गलत बताते हैं, पर माथुर सर ऑफ कोर्स द GS2 लेजेंड, उन्होंने ये चीज पढ़ाया था हमें क्लास में कि प्राइवेट मेंबर भी मनी बिल पास कर सकते हैं, बस बजट नहीं करवा सकते वो, ठीक है, प्लेस नहीं कर सकते बजट, ठीक है। ऑल्सो इलेक्टेड पार्टी मेंबर वही होता है जो कि आपका पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होता है, ठीक है। ऑल्सो इलेक्टेड इंडिपेंडेंट मेंबर वो होता है जो बिना पार्टी के होता है। ऑल्सो एंटी डिफेक्शन में मैं इसी में थोड़ा बता देता हूँ, जो इंडिपेंडेंटली होता है वो अगर किसी का आपका पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब डिफेक्शन में आ जाएगा। ऑल्सो अगर कोई नॉमिनेटेड है उसको 6 मंथ के अंडर अंडर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर उसके बाद करता है, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, और अगर अगर नहीं ज्वाइन करता है विद इन 6 मंथ तो इंडिपेंडेंट ट्रीट होगा। पर अगर 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करे फिर तो वो डिफेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल्सो लीडर ऑफ द हाउस का एक कॉन्सेप्ट है, तो लीडर ऑफ द हाउस आपको पता ही है कि जो भी हाउस से प्राइम मिनिस्टर है वो उस हाउस का लीडर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे हाउस में पीएम खुद बता देंगे कि किसको मुझे लीडर बनाना है। तो एट प्रेजेंट हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो तो लोकसभा से है, तो लोकसभा का लीडर हो गए। और वो जेपी नड्डा साहब जो है उनको वो राज्यसभा पे लीडर बना बना के रखे हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर होता है, ठीक है।
ऑल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका बेसिकली जनरली हम लोग ये देखते हैं कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी से ही होता है, और जनरली उनको 1 बाई मतलब 10% ऑफ द सीट्स होना चाहिए अपोजिशन के पास, ठीक है, वरना फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं होगा। ऑल्सो आपने व्हिप का कंसेप्ट सुना होगा कि व्हिप बेसिकली देखते हैं कि मतलब पार्टी का अपना अपना व्हिप होता है, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ए नाम का कोई पार्टी है, इसका जो व्हिप होगा वो बेसिकली चेक करेगा कि हाउस में ए नाम के पार्टी के जो सारे भी मेंबर्स है वो मतलब पार्टी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, जहां वोट करना है वहां वोट कर रहे हैं कि नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं, तो यही सब देखना होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि यू गाइस अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मेंबर्स एक बार देखें, तो मेंबर्स में आपको पता ही होगा कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 25 साल का ही होना होगा, ठीक है, और राज्यसभा और जो एसएलसी है इसमें आपको 30 साल का होना होगा, क्योंकि ये एल्डर हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं ना हम लोग इसको, और ये लोअर हाउस होता है। ऑल्सो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनको 35 का होना होगा, तो एज आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो आपको वोट वगैरह तो पता ही होता है, आप खुद ही बोलो ना किसको किसको वोट करते हो, आप इन दोनों के लिए वोट करते हो, इनके लिए आप नहीं करते हो, इनके लिए एमएलए करता है वोट, इनके लिए भी आप नहीं करते हो, इनके लिए भी आपके बिहाफ पे कोई करता है, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सब चीज अगर अलग से पढ़ने बैठे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में, है ना। और जो आपका एक चीज ध्यान रखना है, जो आपका राज्यसभा और एसएलसी है इसमें पीआरएसटीवी लगता है, ठीक है, पीआरएसटीवी लगता है, इसमें भी पीआरएसटीवी लगता है, बस इसमें आपका फर्स्ट पास द पोस्ट लगता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है। ये आप अगर आपको नहीं पता तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला जो मेरा वीडियो है उस पर आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इसमें बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो इस पे कंप्रीहेंसिवली कवर करना पॉसिबल नहीं है, और ये सारे सीक्रेट बैलेट से ही होता है। बस आपका राज्यसभा में वो क्या होता है कि ओपन होता है, जो बैलेट है वो राज्यसभा के केस में आपका ओपन होता है, और बेसिकली एमएलए सो देयर वोट, तो अपना जो मान लो ए पार्टी का जो एमएलए है वो बेसिकली अपने ए पार्टी के व्हिप को या फिर कोई भी उनका जो नॉमिनेटेड या फिर मेंबर वगैरह कोई भी है उनको दिखा देते कि राज्यसभा में सेम मतलब उसी को वो अपने पार्टी वाले को वोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी जो आपका तीनों जो आपका मेंबर है वो आपका सारा कुछ सीक्रेट बैलेट से ही होता है, ठीक है। ऑल्सो जो ओथ होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में आपका शेड्यूल 3 में होता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों में शेड्यूल 3 में ही होता है। बस उसमें गवर्नर करवाते हैं, उसमें प्रेसिडेंट करवाते हैं, या फिर उनके बिहाफ पे कोई करवाता है, ठीक है। ऑल्सो आपको इम्यूनिटीज वगैरह पता ही होगा कि हाउस का फ्लोर में कुछ भी बोलना लीगल या फिर खुद के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, और ऑल्सो दैट्स नॉट जुडिशियली रिव्यू, ठीक है, ये सब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। ऑल्सो सिटिंग मिनिस्टर वगैरह पे क्रिमिनल वगैरह इम्यूनिटी होता ही है, ये सब भी आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होता है कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर वायलेट कर दे तो वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर ऑन बाइंडिंग ऑफ लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का एडवाइस पे वो लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस में भी सेम ही चीज फॉलो होगा। बस अगर मान लो कि डिफेक्शन करते हैं कुछ तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर आता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑल्सो मैं और एक चीज बता देता हूँ, जो आपका जो वो चीज है कि मान लो जो मैं लैप्सेस वाला जो एक सीन है ना कि कौन सा बिल लैप्स हो जाएगा लोकसभा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अभी जो बताऊंगा सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको एक डिस्क्लेमर के तरह देखना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट, ठीक है, आप एक बार खुद देख लेना, क्योंकि मैं खुद रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता भाई मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ऑल्सो तो मैं इसमें मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है, मैं कैसे इसको याद करता हूँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगता है मुझे। मैं कैसे याद करता हूँ, मैं ऐसे याद करता हूँ कि जो आपका जो मान लो लोकसभा पे ओरिजिन हुआ, ठीक है, या फिर राज्यसभा पे ओरिजिन हुआ, ठीक है, या तो लोकसभा पे ओरिजिन हो या तो राज्यसभा पे ओरिजिन हो, और ये आपका बेसिकली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, तो ये लैप्स और पेंडिंग है, फिर भी एंड रिजल्ट इसका पेंडिंग है, तो ये लैप्स हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो मान लो लोकसभा पे ओरिजिन हुआ और लोकसभा में पास हो चुका है, ठीक है, लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो भी ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है। मैं बस यही दो चीज याद रखता हूं, ठीक है। बाकी सब केस में आपका क्या होगा, बाकी सारे केसेस में आपका ये होगा कि
रहेगा बिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट सिटिंग मान लो प्रेसिडेंट बुला लेता है तो उसमें बिल रहेगा, ठीक है। ऑल्सो मान लो प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है या फिर प्रेसिडेंट तक पहुंच गया, उसमें भी ये पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो राज्यसभा में ओरिजिन होता है, अभी तक लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, तो भी वो चलेगा। बेसिकली लोकसभा को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा को टच करके अगर प्रेसिडेंट को भी टच कर लिया फिर ठीक है, सिर्फ लोकसभा को टच करके अगर रुक गया तो खत्म हो जाएगा वो बिल, ठीक है। या तो लोकसभा को टच ही ना करे तो भी चलेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, आप कहीं और से देख लो भाई ये, ठीक है। मैं एक ऐसे याद रखता हूँ और मुझे इससे बेटर इसका पता भी नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। इसके बाद और एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आपका जो हाउस होता है वो लीगली बाइंडिंग है कि आपको, लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग है कि आपको साल में 2 बार हाउस का मीटिंग होना जरूरी है, ठीक है। जनरली हम लोग का 3 बार मीट हो जाता है, 3 बार या 4 बार मीट हो जाता है, ठीक है। तो रूल है कि 2 बार एटलीस्ट होना होगा से, मतलब बीच में एक सेशन के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके। और एक चीज की क्वेश्चन आवर जो होता है आपका, क्वेश्चन आवर बेसिकली आपका क्वेश्चन आवर और जीरो आवर जो ये सब होता है ना, ये सब बेसिकली आपका फर्स्ट इंस्टांस में ही होता है, ठीक है। मतलब शुरू हुआ आज का डे और सबसे पहले या तो जीरो आवर होगा या तो क्वेश्चन आवर होगा, डिपेंडिंग की, मतलब बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ अगर चालू हुआ तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन होगा या तो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर को आंसर देना पड़ेगा। तो दोनों हाउस में अगर एक साथ क्वेश्चन आवर होगा तो मिनिस्टर कौन से हाउस में रहेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके। जीरो आवर में आपको एक चीज याद रखना है कि आपको जो अर्जेंट इश्यूज है उनको आप रेज कर सकते हो जीरो आवर में बिना कोई नोटिस दिए हुए, ठीक है। नोटिस के लिए जो वेट नहीं हो सकता जो मैटर्स उसके लिए, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन में क्या होता है कि आपको एक मोशन पास करना होगा और उसमें होगा कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकली टुवर्ड्स अ मिनिस्टर, ठीक है। अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस स्पेसिफिकली टुवर्ड्स अ मिनिस्टर, तो आपको बेसिकली जो उसी मिनिस्टर से आपको कुछ पूछना है तो सेम डे में ये हो सकता है, ठीक है। ओके। ऑल्सो आपका जो कुछ स्पेशल मेंशन वगैरह होता है कि मैटर्स विच कैन नॉट बी रेज्ड अंडर रूल्स रिलेटेड टू क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस और कॉलिंग अटेंशन, इसमें आपको प्रीवियस डे नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन होता है। ये कोई मोशन नहीं है, इसमें बेसिकली इफ एन एमपी फील्स दैट एन आंसर टू स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन फर्दर नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, दे कैन रेज अ हाफ एन आवर डिस्कशन, फॉलो अप अलाउड है इसमें। और कोई वोटिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं है इसमें। 3 दिन का आपको नोटिस देना होगा, ठीक है। ऑल्सो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होता है, जो भी नॉन मिनिस्टर एमपी है उनका प्राइवेट मेंबर है, ये सिर्फ फ्राइडे को दे सकते हैं। फ्राइडे को प्राइवेट मेंबर बिल्स वगैरह का बातचीत होता है, ठीक है। इतने फैक्चुअल डेटा आई डोंट नो मैं कैसे याद रखूंगा, अभी जितना है उतना है, और आई होप कि यूपीएससी इतना फैक्चुअल चीजें ना पूछे, ठीक है। ओके। ऑल्सो आप लोग को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पता होगा कि सेम डे पे इस पे कोई नोटिस नहीं देना पड़ता, और अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर मान लो कॉन्फिडेंस मोशन आए, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद ही अपना मोशन पास करवा के अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है हाउस में, वो अगर फेल हो जाता है तो खत्म हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना होगा, ठीक है। ऑल्सो आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है बेसिकली, वो आपका मिनिमम सपोर्ट ऑफ 50 एमपीज होना चाहिए, ठीक है। 50 एमपीज का सपोर्ट में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू हो सकता है, ठीक है। ओके। तो ये सब हो गया हम लोग का। इसके बाद जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है, ये बेसिकली प्रेसिडेंट अपना या तो ईयर के फर्स्ट सेशन में या फिर जनरल इलेक्शन के फर्स्ट एड्रेस में, जो न्यू लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन के बाद जो न्यू लोकसभा होती है उसमें जो फर्स्ट सेशन होता है उस पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट ड्राफ्ट करके देती है उनको, पॉलिसीज एजेंडा वगैरह सब कुछ। इसमें अगर आपका फेल हो जाता है ये, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो यही सब चीजें हैं। अब अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के साथ डिस्कस करूं जो कि आपका बिल्स को लेके है, ठीक है, इसको भी लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, मार्केट में। पर अगेन माथुर सर ने बहुत अच्छे से ये समझाया, ये शायद मैं अच्छे से बता पाऊं होपफुली। एक तो होता है आपका मनी बिल, एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में मनी से कोई रिलेशन नहीं होता, मनी बिल में प्योरली मनी का बात होता है, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल बिल 1 और एक होता है फाइनेंशियल बिल 2। इसमें आपका मनी ज्यादा होता है और इसमें आपका जो नॉन मनी वाला ऑर्डिनरी वाला फैक्टर है वो ज्यादा होता है एम से, पर मनी फिर भी होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली आइडिया है, ठीक है, आप बस ये ध्यान में रखो कि या तो आपका बिल आइडिया वाला कुछ होगा कि आप कुछ आइडिया अपना कुछ दिमाग लगा के कुछ करना चाहते हो, या तो आप कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसका मेन मकसद ही पैसा खर्च करना है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग बिल्स को क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप बस ये चीज ध्यान रखो कि इसमें कोई मेंबर प्रेफरेंस नहीं है कि आपका प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और प्रायर रिकमेंडेशन का जो बात है आपका प्रेसिडेंट से, उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें तो ऑफकोर्स नहीं चाहिए प्रायर रिकमेंडेशन, पर बाकी तीनों में ही प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बस ऑर्डिनरी में नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल्सो हाउस प्रेफरेंस में ऑर्डिनरी कोई भी हाउस में हो सकता है, पर मनी बिल जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है ये, ठीक है। ऑल्सो मनी बिल में एलएस इज ग्रेटर देन राज्यसभा ही होता है, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल वन में क्या होता है कि क्योंकि इसमें मनी ज्यादा है, क्योंकि इसमें मनी ज्यादा है, तो इसको भी हम लोग लोकसभा में ही करवा देते हैं इंट्रोड्यूस। पर इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकसभा इजिकल टू राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों में सेम पावर, इसमें ग्रेटर इसीलिए कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिर्फ रिकमेंडेशन वगैरह दे सकती है, रिजेक्ट ये सब नहीं कर सकती है, ठीक है। इसमें कर सकती है बाकी दो बिल्स में, फाइनेंशियल बिल्स में, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल जो टू है इसमें तो आइडिया ज्यादा है ना, मतलब ऑर्डिनरीनेस इसमें ज्यादा है, मनी से कम, मनी कम है इसमें मैटर, तो इसमें हम लोग कोई हाउस प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, इसमें तो नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी सब में सेम ही होगा, सिंपल 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 मेजोरिटी होगा सब में, ठीक है, सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग जो है ये सब मनी में नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है, नो जॉइंट सिटिंग। पर बाकी सब में जॉइंट सिटिंग हो सकता है, ठीक है, बाकी सब में जॉइंट सिटिंग हो सकता है, ठीक है। और मनी बिल में सिर्फ आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है, मनी बिल में आप सिर्फ रिटर्न नहीं कर सकते हो, बाकी सब में सब कुछ पॉसिबल है। बस इतना ही है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का चीज, ठीक है। बाकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसमें तो आपका कोई किसी पे अपना अपना मतलब कोई भी ना हाउस का कोई प्रेफरेंस है ना मेंबर का कोई प्रेफरेंस है, ये आर्टिकल 368 के अंदर आता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें तीन तरह का मेजोरिटी होता है, या तो सिंपल मेजोरिटी हो, या तो स्पेशल मेजोरिटी 2 या 3 हो, मतलब एक में रेटिफिकेशन जरूरत होता है, एक में विदाउट रेटिफिकेशन मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग वाला जो चीज है वो आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डन, बिल्स भी हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ कुछ बजट रिलेटेड आता है वो तो हमने इकोनॉमी में कवर किया है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि फिर से इसमें हम अलग से बताएं कि रेवेन्यू रिसिट क्या होता है, कैपिटल रिसिट क्या होता है। आप सीधा सीधी मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में जाना, उसमें बजट मैंने किया हुआ है, उसी में आपको मिल जाएगा, तो इसमें डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं कुछ, जैसे कि जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है, ठीक है, जो स्टैंडिंग कमिटीज होती है वो आपका हमेशा रहता है। कोई एडहॉक कमिटीज होता है तो वो टेम्पररी बेसिस पे कोई एक पर्पस के लिए बनाया जाता है। फिर आपका जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो पूरा एकदम डिटेल में चीजें हैं, उसको थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं वो तो मुझे याद नहीं रहता, आई डोंट नो कि ये मैं यहाँ पे तो नहीं करूंगा कवर ऑब्वियसली, पर आई डोंट नो कि मैं इन फ्यूचर भी एग्जाम के लिए कैसे इसको याद रखूं। जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग का जैसे कि उसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे, लोकसभा से कितने होंगे, राज्यसभा से कितने होंगे, नॉमिनेटेड होगा कि इलेक्टेड होगा कि फंक्शंस क्या होगा, ऐसे लगभग 10-12 ऐसे टाइप के कमिटीज है। तो आई डोंट नो कि कैसे पॉसिबल होगा याद करना, फिलहाल मुझे नहीं है, कल अगर कमिटीज पे कोई भी क्वेश्चन आता तो आई विल जस्ट कीप। एंड जो हम लोग का 2 पार्ट में वीडियो बनाने का प्लान था वो अब नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बहुत हद तक कवर कर लिया है। बस ये चीज मुझे श्योर नहीं है, मैं अभी यहाँ पे चेक भी नहीं कर सकता कि मैं, क्योंकि मेरे सारे नोट्स वगैरह सब टैब में ही रहता है और मैं टैब में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉस चेक। बस ध्यान रखना कि ये जो मैंने लैप्सेस वाला बिल का कंसेप्ट बताया, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस इफ इट्स करेक्ट, ठीक है। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि सही है कि नहीं है, बाकी मैं इसको देखूंगा अच्छे से। ये 100% ठीक है, इस पे कोई दिक्कत नहीं, ये 100% ठीक है, ठीक है। तो मोस्टली आई थिंक कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मैंने लगभग कह सकते हैं कि 90% तो कवर कर ही दिया, ठीक है। 10% कुछ कुछ चीजें छूट गया होगा, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी, तो उसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतने अच्छे से नहीं आता है मुझे। ऑल्सो कलर्स वगैरह भी होता है कि एमएलए का कौन सा कलर होता है, फिर स्टार्ड अनस्टार्ड किसमें पिंक होता है, एमएलए का एमपी का शायद पिंक होता है, तो ये सब चीजें जो एकदम मतलब एकदम पूरा पूरा फैक्चुअल चीजें, ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे, ठीक है। बेसिकली हमने मोर और लेस रिवीजन कर लिया, अब कल क्वेश्चन आने देते हैं। अब बेसिकली जो मैंने यहाँ पे जो आपका डेट दिया है, यहाँ पे हमने तो पार्लियामेंट कल के लिए किया ना, ये बेसिकली कल के टेस्ट के लिए है। तो कल मैंने सिलेबस जो देखा, पार्लियामेंट कल है और स्टेट लेजिस्लेचर डे आफ्टर टुमारो है, ठीक है। तो कल का दिन हम लोग का वीडियो बनाने का कोई टॉपिक होगा नहीं, फिर भी मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही 5-10 मिनट का, कुछ भी डेली अपडेट दे दूंगा अपना।
तो फिर ये जो 25 क्वेश्चन बनेंगे और ये जो 25 क्वेश्चन बनेंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें सारथी पूछ रहा है। उस बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे हम लोग को कितना सॉल्व हुआ नहीं हुआ। अगर ये 50 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे हम लोग का सही हो जाते हैं एंड तो फिर हम लोग आई थिंक वी शुड नॉट वरी मच। और पर इसमें अगर बहुत ज्यादा गलती होता है तो ये चैप्टर को एक बार फिर से हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल चैप्टर है तो इस पे कुछ ज्यादा करने का होता नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आप लोग जो मैंने इनिशियली बात किया कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।